নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু হ্যাশট্যাগৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মই মানৱ প্ৰতিমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমি জীৱনকালত বহুত মানুহ লগ পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ সেই লোকসকলক তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে, তেওঁলোকৰ ট্যালেন্ট আছে আৰু সেই সমূহ আমি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ বিষয়ে এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেওঁলোকক ভালকৈ জানিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তেনেকৈ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আজি আমাৰ অতিথি। তেখেতক প্ৰথমতে আমি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে চিনি পালোঁ। তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ তেখেত এগৰাকী মটিভেশ্যনেল স্পিকাৰ। তাৰ পাছত আমি গম পালোঁ যে তেখেত এগৰাকী বিগ টাইম ফুডি, তেখেত এগৰাকী ফুড ব্লগাৰ। তাৰ পাছত তেখেতে আছুতীয়াকৈ অন্যান্য কাম কিছুমানো কৰি আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতৰ অসমৰ সৈতে এটা খুব সুন্দৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি অভিনেতা আশিষ বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে আৰু লগতে আমাৰ যিটো নতুন এটা সম্পৰ্ক তেখেত বৰ্তমান অসমৰ জোৱাই গতিকে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰূপালী বৰুৱা দুইগৰাকী আমাৰ আজিৰ অতিথি। মই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ দুইগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। सर बहुत बहुत स्वागत है असम में। आई होप दिस इज नॉट योर फर्स्ट विजिट। आई थिंक असम में पहले भी आ चुके हैं आप सर? मैं बहुत बार आ चुका हूँ असम में और ईच टाइम यहाँ जब आता हूँ तो जी इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सर अभी असम के साथ एक नया नाता जुड़ा है तो असम एसएमईज पीपल के मेहमान नवाजी में कोई सर कसर तो नहीं छूट गया सर? मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको बताऊं मेरे पिताजी श्री गोविंद विद्यार्थी जी वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के बहुत अच्छे मित्र थे जी। वो संगीत नाटक एकेडमी में काम करते थे और आज भी मैं याद कर रहा था कि कई साल पहले जो मेरी पहली फ्लाइट जो मैंने की थी कभी जी वो की थी जब बाबा मैं मेरा स्कूल में था, पहली बार हम लोग फ्लाइट से आए थे गुवाहाटी। ओके और तो मेरा आसाम से नाता बहुत पुराना है मेरे पिताजी के दौरान से और वो संगीत नाटक अकेडमी में जैसे मैंने बताया काम करते थे। और उसके बाद खैर ड्रामा स्कूल, उसके बाद मेरे तीन क्लासमेट्स यहाँ पर हैं, बहारुल इस्लाम, भागीरथी बाई और अनूप हजारिका जी तो उनसे मिलने हमेशा आता रहा हूँ। जी तो प्यार में हमेशा बहुत प्यार मिला है यहाँ पर जी। और इस बार तो एक फेमिलियल तरीके से प्यार मिल रहा है जी जहाँ रूपाली की फैमिली के साथ मैं मिल पा रहा हूँ। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ৰূপালী বাক মই সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক আমি এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেখেতৰ আৰু কেইবাটাও চিনাকি হৈছে নতুনকৈ, তেওঁ বিভিন্ন কামৰ সৈতে জড়িত আৰু আপোনালোকৰ বিয়াৰ পাছত এটা নতুন সম্পৰ্ক গঢ়লৈ উঠিছে। গতিকে অসমবাসীক মই এইটো জনাওঁ যে তেওঁলোকে বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰ বাবে ঘৰলৈ আহিছে, গতিকে প্ৰথমবাৰ ND24 সন্মুখত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই অলপ চিনাকিটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা যে কেনেকৈ তেখেতৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হ'ল? চিনাকি প্ৰথম কেনেকৈ হ'ল, তেওঁ ব্লগিং যে কৰে, তেওঁ ব্লগিং কৰিবলৈ আমাৰ কেফে এখন আছে, কেফে নাৰুমেগ বুলি কলকাতাত নামেগ বুলি ষ্ট'ৰখন আছে, তাৰ সৈতে আমাৰ কেফেখনো আছে, কেফে নাৰুমেগ। তাত তেওঁ ব্লগিং কৰিব আহোঁতে প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ। তেতিয়া এনেই লগ পালোঁ আৰু তেওঁক মানে তেওঁৰ এটা খুব স্পেচিয়েলিটি কৈছোঁ আছে যে মানুহক খুব পটককৈ সহজ হ'বলৈ সহায় কৰে আৰু চব এনেকৈ কথা পাতে যে চব সহজ হৈ যায়, মানে সেইটো এটা তেওঁৰ সেইটো গতিকে তেখেতক ধৰক আমি অভিনেতা হিচাপে পাইছোঁ। তাৰ পাছত ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে তেখেতৰ এটা ব্যক্তিত্ব আছে যে তেখেতে সকলোকে সহজ কৰি ল'বলৈ পাৰে আৰু তেখেতৰ অন্য চিনাকিও বহুত আছে বা, কিন্তু আমি যদি কওঁ যে আশিষ বিদ্যাৰ্থীৰ আপোনাৰ কোনটো গুণে আপোনাক বেছি আকৰ্ষিত কৰে? হি ইজ ভেৰি খুব মৰমীয়াল মানুহ। কি এটা কথা কৈছিলে তেওঁ প্ৰথম, তেতিয়া মই আচৰিত হৈছিলোঁ। মোৰ কিবা এটা বস্তু এৰি থৈ আহিলে গাড়ীত, তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰজনক কৈছে বন্ধু মোক এইটো আনি দিব। ড্ৰাইভাৰ সদায় মানে তেওঁ তেনেকুৱা বন্ধু বুলি কয় চবকে। মই খুব ভাল লাগিছিলে যে চবকে ইকুৱেল ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো খুব তেওঁৰ এটা মানে ভাল লগা এটা ব্যক্তিত্বত এটা দিশ এটা আছে। ঠিক আছে, মই তেখেতকে সেইটো কথাই সুধিম যে जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रूपाली जी के साथ आपका जो शुरुआती दौर पे जैसे कि आप लोगों ने शुरू किया था, उसके बाद रूपाली जी की ऐसी क्या खूबियाँ थी जिसमें आप सम्मोहित हुए? तो एक शब्द जो मैं आपको कहूँगा वो है रूपाली में एक इनेट काइंडनेस है।
और पता है ज़िंदगी में एक टाइम पर आकर वो कुछ चीज़ें आपको बहुत टच करती हैं और मुझ में एक सिंप्लिसिटी, काइंडनेस, वेरी हाईली कल्चर्ड और उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी जान पाया, जैसे वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट वो ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है उन्होंने। उसके बाद एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ना वो है कि जो बहुत देख चुके होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते जी। वो सिंपल होते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार वो कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन एक सिंप्लिसिटी में एक पावर होता है एंड दैट्स व्हाट आई हैव experienced in her and that has really touched me. ৰূপালী বাক মই এইটো কথাই জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে আমি জানো আপোনাৰ উত্থান পতন বহুত দেখিছে এণ্ড ইউ হেভ অলৱেজ বিন আ ভেৰি টাফ লেডি। আপুনি একদম ফেচ কৰিছে বস্তুখিনি, তাৰপাছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত বা চ' আপুনি এই সিদ্ধান্তটো লওঁতে কিমান কঠিন আছিলে আপোনাৰ কাৰণে? যেতিয়া কিছুমান ঘটনা হ'ল লাইফত তেতিয়া অকলশৰীয়া এটা ফিলিং হয় নহয়, সেই অকলশৰীয়াটো বহুত বস্তু অনুভৱ কৰা হয়, বহুত বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰা হয় যে লাইফত অকলে থাকিলেহে এনেই সেইটো পটককৈ মানুহে নাই নহয়। তো তেতিয়া মই বহুত কথাত গম পালোঁ যে মানুহক কম্পেনিয়ন এজন লাইফত খুব দৰকাৰ, লগৰী এজন লাগে। কাৰণ কিবা এটা কথা সুধিবলৈ, কিবা এটা এডভাইচ ল'বলৈও কেতিয়াবা আপোনাৰ মানে বিচাৰিব লাগে কাক সুধিম, আৰু বা কথা গোটেই দিনটো কাম বন কৰি ঘৰত আহি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈওতো কোনোবা এটা লাগে। তেনেকৈ মই ভাবিলোঁ যে গোটেই লাইফটো আছে যদি আই ৱাজ অ'পেন টু ইট, আৰু তেনেকৈ মই তেওঁক লগ পালোঁ। আৰু তেতিয়া মই ইমান ৰেডি নাছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ লগ পাই কথা পাতি, কিন্তু মই যে অ'পেন মাইণ্ড এটা আছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ কাইণ্ডনেছটো দেখি লাহে লাহে কথা পাতি তেতিয়া মোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সহজ হ'ল যে এজন মানুহৰ লগত মই থাকিব পাৰিম, সুখত মানে কি এটলিষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম, তেওঁ বুজি পাব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আছে। তেনেকৈ মই মানে ফুল ছাপৰ্ট। চবেই বিচাৰিছিলে যে মই কাৰোবাক বিচাৰি পাওঁ, চবেই সেইটো বিচাৰিছিলে, সেইটো কাৰণে মানে মোৰ কাৰণে আৰু হেৰি হৈ গ'ল, সেইটো এটা এনকাৰেজমেণ্ট। চবেই ক'লে তুমিতো অকলে গোটেই জীৱনটো থাকিব নোৱাৰা, চ' আমি খুব ভাল পাম ইফ ইউ ফাইণ্ড ছামৱান। তেতিয়া তেওঁক লগ পালোঁ আৰু ইটছ ডেষ্টিনি, আই থিংক দ্য ইউনিভাৰ্ছ। তেখেতে যেতিয়া মিলাম বুলি ভাবে নহয় তেতিয়া কোনেও ৰখাব নোৱাৰে। সেইটোৱে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চটো কাৰ আছিলে আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰ পৰা? ছাৰে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ কৰিছিলে? এপ্ৰ'চটো তেওঁৰ ফালৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু মইতো নিজে এপ্ৰ'চ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁ এজন নাম থকা মানুহ। মই তেওঁ কেতিয়াও হেৰি তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰোঁ ন। চ' তেওঁৱে মোক কৈছিলে যে এনেকৈ ভাবিব পাৰি নেকি। তেতিয়া মই ক'লোঁ আপোনাকতো মই এনেকুৱা ধৰণৰকৈ মানে এজন এনেকুৱা মানুহ ভাবোঁ, মানে মই নিজকে মইতো কমন মানুহ এগৰাকী তেনেকুৱা। কিন্তু তেওঁ এটা কৈছে মোক তেনেকৈ নাভাবিবা, মোক এজন এনে মানুহ এজন বুলি ভাবিবা, চিম্প্লিচিটিৰে চিম্পল মানুহ এজন। তেনেকৈ ভাবোঁতে তেওঁ সহজ কৰি দিলে, মোক ইজি কৰি দিলে, তেতিয়া মোৰ ডিচিশ্যনটো ল'বলৈ সহজ হ'ল। खूब सुंदर एक स्टोरी। मैं और किसी कथा जानने चेष्टा करूँ सर। जैसे कि मैम ने बताया कि कंपेनियनशिप के बारे में, हाउ डू यू डिफाइन दैट? हाउ इम्पोर्टेंट इज अ कंपेनियन इन योर लाइफ? तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। श्योर सर। मैं ना बहुत ट्रैवल करना पसंद करता हूँ जी, और मुझे हमेशा से लोग कहते थे यार कि तू लोगों के साथ घूमता है बहुत, अकेला घूम, उसमें कुछ एक अजीब सा अमेजिंग चीज़ मिलती है। ओके। तो पूरी ज़िंदगी मानस मुझे ना लोगों के साथ ही ब्रह्म दिखा है, मुझे जो अमेजिंग दिखा है वो लोगों के साथ दिखा है जी। और ओवर द टाइम मैंने ये पाया कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे साथ अच्छा लगता है, और मुझे प्यार से बहुत प्यार है। वाह। और प्यार मुझे छूता है, और प्यार ज़रूरी नहीं कि वो जस्ट लाइक एक हस्बैंड वाइफ नहीं, कहीं पर भी जब मैं प्यार देखता हूँ, और मैं बहुत एक्सट्रीमली ब्लेस्ड बीइंग एन एक्टर, और क्योंकि इतने साल के करियर में 11 भाषाओं में काम कर चुका हूँ, 250 से ज़्यादा फिल्में अब हो चुकी हैं, हर तरफ के लोगों से प्यार मिलता है। जब वो मिलते हैं, बात करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो आई एम टच्ड बाय लव एंड आई हैव सीन कि मुझे ना
कोई अचीव बहुत करता है, बहुत अमीर है, बड़े कनेक्ट्स हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई कहता है कि उनसे मिलना बड़े काम के हैं, तो मैं कहता हूँ मैं कभी मतलब ऐसे कभी मिल लूँगा, नमस्कार कह दूँगा, पर वो काम की वजह से मैं किसी से मिलूँगा नहीं। आप समझ रहे हैं? जी जी। मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के साथ ऐसे ही बैठ के खा सकूँ, कुछ गपिया सकूँ, बैठ के यूं ही हम लोग कुछ साथ देख सकें, वो लोग मुझे अपने घर बुलाएं और साथ में हम कुछ अमेजिंग टाइम काटें विदाउट एनी, कहते हैं विथ नो पर्पस इन माइंड। ये नहीं कि और भाई क्यों फ़ोन किया, कुछ नहीं, ऐसे यूं ही फ़ोन किया। तो उस यूं ही ज़िंदगी में जो एक चीज़ मुझे बहुत छूती है वो है प्यार। और ता ज़िंदगी में बहुत खुशनसीब रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। तो एक 57 साल की उम्र में भी जब मैंने अपने आप को पाया ज़िंदगी की एक मोड़ पर, मैंने कहा यार कि एक्चुअली मेरी जो चाहत है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ घूमूँ और बहुत ज़रूरी है मेरे पास कि मेरे साथ एक साथी हो। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं औरों की बात नहीं करता हूँ, मुझे प्यार बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे लिए साथी का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा और मेरी समझ है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा किया, लेकिन जो हुआ और जो मुझे मिला, जैसे रूपाली मेरी ज़िंदगी में आई, मैं शुक्रिया के अलावा और कुछ नहीं कहता हूँ। इट्स ऑल डेस्टिनी सर। नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि इफ़ यू कैन रिकग्नाइज द अमेजिंग इन योर लाइफ, द लाइफ इज़ अमेजिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है। रियली आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट लाइफ मानस। मैं जो कुछ भी करता हूँ तो मैं उस एक्साइटिंग जर्नी को ना आई लुक एट इट विथ वंडर, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सर आपने कहीं पे कहा था कि ज़िंदगी जीने को आप अपना पहला पेशा मानते हैं। जी। सर हाउ डू यू डिफाइन लाइफ एक्चुअली, बिकॉज Living- आपसे सीखना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे सीखना मतलब चाहिए हमसे। मैं कहता हूँ कि हम सबकी ना अपनी ज़िंदगी है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग कई बार कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ और कहते हैं कि यार उसकी जैसी ज़िंदगी अगर होती, क्योंकि हम जिसको कहते हैं ना उसकी जैसी, हम उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग एक छवि बनाते हैं, वी हैव एन इमेज ऑफ हाउ अदर्स आर लिविंग। सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप स्टार्स को देखते हैं, अरे यार क्या ज़िंदगी है, वो चाहिए, और अपने आसपास वालों को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी आप वैल्यू नहीं समझते। सो आई पर्सनली बिलीव कि लिविंग योर ओन लाइफ, रिकग्नाइजिंग योर ओन लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेयर यू हैव टू गेट कि आपकी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी की तरह नहीं है। नाउ यू ईच वन ऑफ अस, हम जब भी यहाँ पर जो बैठे हैं, हम सबकी अपनी ज़िंदगी के राह है। हम अगर अपनी राह को अमेजिंगली जी पाएं वाइल वी आर डीलिंग विद थिंग्स, तो वो अपनी ज़िंदगी है। जी। नहीं तो हम किसी और की ज़िंदगी, मतलब अच्छा हो भी रहा है लेकिन दुखी है क्यों, नहीं पर उसकी ज़िंदगी तो और अच्छी है। भाई तुमको नहीं पता उसकी ज़िंदगी के बारे में, बट इफ़ यू कैन, हम अज्यूम करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्ट कर सकें, जैसे मैं करता हूँ, आई से आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई शेयर विद पीपल। प्लीज रिस्पेक्ट योर लाइफ, व्हाट यू हैव, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव। Of course. अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट भी करेंगे फिर भी आपके पास वो चीज़ है और आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी। सो आई रियली से गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। अच्छी बात है। कैसा दिन, अच्छा दिन काटा यार, क्योंकि मेरे पास यही दिन था, वो दिन नहीं था, क्योंकि वो दिन है भी नहीं किसी के पास। आज मेरे पास जो है मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने उस दिन के साथ ना कुछ खास करूँगा। एक ये जिद मेरी ज़िंदगी में ज़रा अहम है मानस, मैं हर रोज़ कुछ खास करता हूँ। I want to have an extraordinary day. I don't know, ऐसा नहीं, it has to be an extraordinary day. Every day. Exactly, every day. क्योंकि किसकी ज़िंदगी है भाई, किसकी ज़िंदगी है? आपकी ज़िंदगी किसकी ज़िंदगी है? मेरी है बस। तो अपनी ज़िंदगी को खास बनाना चाहते हैं कि नहीं? खत्म हुई बात। वो ड्यूटी भी मेरी है। मेरी है, और कोई थोड़ा ना खास बनाएगा। तो मेरे ऊपर है कि मैं इस जिंदगी को, कैसा दिन था, कट गया यार, बोरिंग दिन था, आप तो चले गए। Who's left with the boring day? I. Yourself. Why? I am grateful that I'm alive. मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं कूदता हूँ जिंदगी में। I dive into life. वाह। I meet people, I do some amazing work. मैं आज भी मुझे भूख है, मैं अच्छे कैरेक्टर्स खेलता हूँ, मैं जो रोल करता हूँ लोग कहते हैं वाह, मैं डबिंग भी करता हूँ लोग कहते हैं वाह।
क्योंकि मैं आई गिव इट दैट एक्स्ट्रा बिट, यू नो, आई एम पैशनेट अबाउट इट. और जब आप अपने ज़िंदगी के प्रति पैशनेट होते हैं ना, तब आपको इतनी एनर्जी मिलती है अपने दिन में, देन यू कैन शेयर विद अदर्स. लेट्स बी ग्रेटफुल टू लाइफ यार, लेट्स नॉट कंप्लेन. क्या खूब कही आपने सर. और कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आपके पेरेंट्स के बारे में, जी. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि योर डैड ही वाज फ्रॉम दिल्ली एंड योर मॉम. Baba was born in Kerala. Okay. And Ma was born in Ajmer. Ma was a Rajasthani but Bengali. Yeah. और बाबा केरल के. जी. और मेरी पैदाइश और परवरिश हुई दिल्ली में. जी. और तो एक मिक्स कल्चर सर बचपन से ही है आपके परवरिश में सर. और ऐसा पढ़ा जाता है कि आपने कहीं पे कहा था कि वो आपके पिताश्री और माताश्री दोनों बहुत खुश रहते हैं. तो that impact has always been your energy, I think. Absolutely. See, my parents never had a car. Okay. मैं जानता हूँ वो लोग कार चाहते थे, जी. लेकिन कभी कार नहीं ले पाए, जी. है ना. उन्होंने अपना काफ़ी मेहनत करके घर बनाया लक्ष्मी नगर में, उस घर में रहे. माँ बाबा टैक्सी में चलते थे, Okay. ठीक है, पर कार के लिए कभी पैसे नहीं इकट्ठा कर पाए, तब लोन नहीं मिलते थे. बाबा कभी सेक्रेटरी नहीं बने संगीत नाटक एकेडमी के, उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी ही रखा गया. कई पॉलिटिक्स हुए. बाबा संतुष्ट, खुश, उनके दोस्त अच्छे थे, माहौल अच्छा था, कंपैरिजन में कभी नहीं जिए. तो मैं जब फिल्म अभिनेता बना, एक चीज़ इसने मुझे बहुत स्ट्राइक किया मानस. मैं बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से, पिताजी संगीत नाटक एकेडमी में, वहाँ कथक केंद्र में, वहाँ से मैं फिल्म वर्ल्ड में आया. आपको पता है आर्ट्स और फिल्म का उस समय कोई रिश्ता ही नहीं था. Okay. है ना, एकदम अलग दुनिया थी. फिल्मों में हम किसी को नहीं जानते थे. बम्बई में आके काम ढूंढ के मिला. बट मेन चीज़ ये है कि जब मुझे काम मिलने लगा, मैंने एक अमेजिंग चीज़ पाई कि मेरे पास और मेरे आसपास वालों के पास इतना ज़्यादा था मेरे माँ बाप के कंपैरिजन में, लेकिन हम सब खुश नहीं थे. हम सब के अंदर ना कंटिन्यूसली कुड़ती थे यार, उसके बाद और भी अच्छी गाड़ी है, उसके बाद और भी अच्छा घर है, हर चीज़ कंपैरिजन में था. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, दिस इज अराउंड 99-2000 की बात है. तो मैं सोचने लगा कि हो क्या रहा है यार. लोग, दुनिया मुझे जानती है, और दुनिया में जिस को एक्टर के साथ काम कर रहा है इसको जानती है, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि बड़े दुखी कुड़जे रहे. लोग हमारे ऑटोग्राफ को तरस रहे हैं और हम कुड़ रहे हैं. So there's something which I am missing out, and that is when I started on this journey to discover what is it that I am not acknowledging in my life. And then I got something very powerful for myself कि माँ बाबा या बहुत सारे लोग जो खुश हैं, वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वो अपने इस वर्तमान को गले लगा कर चलते हैं. जी. वो लोग फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे. सोचते हैं लेकिन, जी हाँ सोचते हैं, लेकिन अपने वर्तमान को दुत्कारते नहीं हैं. हम लोग, कई सारे लोग अपने वर्तमान को दुत्कारते इसलिए हैं क्योंकि इसी वर्तमान में हमें कोई और दिखता है, अरे यार उसकी सिचुएशन, और हम अपने वर्तमान को दुत्कारते हैं. हम अपनी नौकरी को झांकना, एग्जैक्टली, अपनी नौकरी को दुत्कारना, अपनी ज़िंदगी को दुत्कारना, हमको कम पैसे मिल रहे हैं दुत्कारना. सो व्हाट इट डज इज it starts making you bitter, and then you start, कोई और तरक्की करता है, अब उसकी आप बुराई करना शुरू करते हैं. किसी और को खुश देखते हैं उसको. So what I have decided, and for many years I follow that, I do not have time to discuss anyone. और मैं लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ, किसी और को डिस्कस मत करिए. That's a bliss, sir. Okay? Work at creating something amazing by you. तो जब मैं हर रोज़, जब मेरी मुहिम है कि हर रोज़ कुछ खास करूंगा, तो बताइए मेरे पास कुछ और डिस्कस करने का टाइम है? बिल्कुल नहीं. मैं दरअसल अपने वर्तमान को एक्सेप्ट करके अपने भविष्य को इम्प्रूव कर रहा हूँ बाय वर्किंग ऑन इट रादर देन डिस्कसिंग इट, बुराई करना. और इसलिए मुझे लगता है कि टुडे आई फाइंड माई सेल्फ एट अ प्लेस जब मैं एक्साइटेड हूँ ज़िंदगी के प्रति. यू नो, यस आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर. मैं और घूमना चाहता हूँ, और लोगों को मिलना चाहता हूँ, यू नो. और मैं एक्साइटेड हूँ रोल्स करने का. मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं रूपाली के साथ मिलकर बहुत सारे थॉट्स मैं रूपाली से सुनता हूँ. बहुत अच्छा लिखती हैं वो. कभी इनका एक इंस्टाग्राम वो है, हैंडल का नाम क्या है जिस पे आप लिखती हैं? धुनिया बाय रूपाली. आप कभी देखिएगा. बहुत
beautiful thoughts she writes. And my idea is that how will it be अगर मैं ऐसे ही अच्छे लोगों के थॉट्स और अच्छे लोगों तक पहुंचाऊं और अच्छे लोगों को एनकरेज करूं कि वो अपने अच्छे थॉट्स शेयर करें, क्योंकि दुनिया में लोग बुराई बताने वाले बहुत लोग हैं. इस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, सड़क खराब है, इधर ये चीज, सब कुछ करेक्ट है, करेक्ट का एक भी बात गलत नहीं है. जो आप बुराई कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है. अब पता है मैं जो अच्छा है उसके बारे में बात करूंगा. क्यों? क्योंकि वो अच्छा है जी. उसके तो बारे में लोग आप हर समय मुरझाई बातें क्यों कर रहे हैं भाई? ये दुखी है, वो दुखी है, और फिर जी हम उसी को रहे. जी. सो आई एम वेरी क्लियर, आई एम समबडी हु सेलिब्रेट्स होप. मैं आशा को की उत्पत्ति में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आशा के साथ जीता हूँ. और मेरी कोशिश है कि हम लोग सब अगर आशा के साथ जिए ना, तब हम सचमुच अपने भविष्य को, अपने देश के भविष्य को, अपने आसपास के लोगों के भविष्य को बदल सकते हैं. सर, आपने एक सेंटेंस कहा कि यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट लाइफ. यस. लेकिन अभी ऐसा देखने को मिलता है सर कि 20s में 30s में स्टूडेंट्स या फिर बच्चे वो लोग एक्साइटेड नहीं है अपने लाइफ के बारे में. ऐसे एक जोन में वो सब चले गए कि वहाँ से उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है. सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि खुश रहना और सुखी रहना, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? तो लेट्स नॉट प्ले विद वर्ड्स, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. अगर आप सुबह उठकर अगर आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, तो वो गुड स्पॉट है आपका. अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, अब आई हैव नो होप, अब मैं सिर्फ क्रिटिसाइज करूंगा, तब आप कुछ प्रॉब्लम एरिया में हैं. तो इसको हम खुश सुख इसकी बात ना करें, अगर सिंपल ये करें, अगर हम लोग क्लियरली देख लें कि आज मैं जिंदा हूँ. आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आज मैं जिंदा हूँ ना. बहुत ऐसे लोग हैं जो जिंदा नहीं हैं. तो अगर मैं जिंदा हूँ तो एक जो सांस ले रहा हूँ कुछ कर दूँ ना यार. देखिए, कोई भी आदमी इंट्रिंसिक कहते हैं ना कि उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिला है. मैं देखता हूँ कि मेरे पास एडवांटेज है. पता है, आई हैव गॉट एन एडवांटेज. यू नो व्हाट दैट एडवांटेज इज? मैं जिंदा हूँ. अब मैं जिंदा हूँ, अरे हाँ, इसमें कौन सी बात है? नहीं बात. जिस दिन आप समझ गए, तो मैं इस इंटरव्यू में भी बैठा हूँ रूपाली के साथ, मानस के सामने. आई एम एट एन एडवांटेज, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर हूँ. इसके कुछ पहले मैं कुछ और कर रहा था. आई एम एट एन एडवांटेज क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं वहाँ था. तो जब आप खुद को एक एडवांटेज के रूप में समझ पाए, व्हेन यू सी आई एम एन एडवांटेज, अब मुझे आप कहीं पर भी डाल दीजिए, बाढ़ में डालिए, आई एम एन एडवांटेज. मैं एटलीस्ट तैरने की कोशिश कर रहा हूँ ना. आप मुझे शूटिंग में डाल दीजिए, आई एम एन एडवांटेज क्योंकि मैं जिंदा हूँ और मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा. अगर मैं जिंदा ना हूँ तो मैं हूँ ही नहीं ना. सो स्टार्ट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ. लुक एट योरसेल्फ एज एन एडवांटेज. एंड ये मैं यंग, बूढ़े, बच्चे, जवान सबसे एक बात कहूँगा, भाई शुक्रगुजार हो जाओ कि आप जिंदा हो. और एक बात ये ध्यान लो, नोबडी इज मोर कमिटेड टू यू देन यू. अपार्ट फ्रॉम यू, आपके अलावा कोई आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है. तो व्हेन नोबडी इज मोर इंटरेस्टेड इन यू देन यू, आप फुल्ली खेलते हैं ना यार. क्यों नहीं? फुल्ली खेलते हैं. घबराने का नहीं है बापू. ये नहीं सोचना लोग क्या कहेंगे, लोग डरे हुए हैं, ये कह दें कि वो दे आप बहुत यूं कर रहे हो. हाँ भैया, मेरे हाथ है, मैं करूंगा यूं. मैं ऐसे करे क्यों जीऊं? तो हिम्मत से जिए, खुल के जिए, फ्रंट फुट पर खेले. घबराइए मत. आप गिरेंगे तो लोग हंसेंगे, तो फिर उठ जाइए. घबराने का नहीं है. एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई विल से. डोंट डिस्कस अदर्स. डू नॉट हैव टाइम फॉर अदर्स. Let's have time Please, for ourselves. only have time. I only work on myself. मैं खुद को और अच्छा काम करने पे लगा रहता हूँ. और ये जिंदगी बची है मेरी, 58 साल हो गया हूँ मैं, तो 50% I have lived. Another 50% बचा है मेरी जिंदगी. रूपाली বা, ইমান এগৰাকী পজিটিভ মানুহৰ সৈতে থাকি আপোনাৰ জীৱনত কিবা চেঞ্জেছ আহিছে নে নাই? আপুনি নিজক চেঞ্জ পাইছে নে কিবা? তেখেতে আপোনাক কেনেকৈ ইনস্পায়াৰ কৰে বা তেখেতে কেনেকৈ আপোনাক চেঞ্জ আনিছে আপোনাৰ ভিতৰত? চেঞ্জ মানে মই এটা এইটো দেখিছোঁ, আমি যোনবোৰ কমন নৰ্মেল মানুহ, ইমান গৰম লাগিছে, বিৰাট গৰম দেই এনেকৈ, বা এই ৰাস্তাবোৰ যে হৈছে আৰু আমাৰ আজিকালি, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লেইনছ নায়েই. মানে ৰাস্তাটো এনেকুৱা যদি এনেকুৱা আৰু সেইটো আৰু কি ক'ব লগা কথা? মানে অনবৰতে কমপ্লেইন কিয় কৰি থাকিব? যি আছেতো আছে, মই ক'লেতো চেঞ্জ হৈ নাযায় ৰাস্তাটো. এতিয়া আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব. আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব. আৰু কমপ্লেইন একদম নকৰে.
কেতিয়াবা নিজৰে হেৰি লাগে ইমান গৰম লাগিছে ভাবো মই কমপ্লেইন কৰিছোঁ মানে সেই কমপ্লেইনিং এটিটিউডটো অলপমান কমি যায় এনেকুৱা এজন মানুহ যদি লগত থাকে এতিয়া আপোনাৰো চাগে সেইটো লাহে 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 এডাপ্টেবিলিটিটো নহয় জানো মানে একেবাৰে তেনেকুৱা হ'বলৈ ইমান সহজ নহয় দিগদাৰী কিন্তু বহুতখিনি মানে শিকিছোঁ তেওঁৰ পৰা আৰু একেবাৰে কমপ্লেইন নকৰে কাৰো কথা বেয়াকৈ কেতিয়াও নকয় কোনো মানে একেবাৰে গছিপত নায়েই মানে বহুত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কেৰেক্টাৰ এইবোৰ মানে হেৰি আমি নৰ্মেল মানুহবোৰে অলপমান কওঁ এই কেনেকুৱা যে কিবা কিবি কওঁ কেতিয়াবা একোৱেই নকয় কাৰো কথা বেয়া বহুত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কোৱালিটিজ আছে মানে জীৱনৰ প্ৰতি যিটো ধাৰণা সেইটো তেখেতৰ পৰা আপুনি অলপমান সলনি কৰিবলৈ পাৰিছে নিশ্চয় পাৰিছোঁ মানে এভৰি টাইম কিবা এটা ভাবিলে আৰু পজিটিভ হ'বলৈ তেওঁ সহায় কৰে যে ঠিক আছে এইটো সহজ কৰি দিয়ে কথাবোৰ যে মোৰ গৰম লাগিছে কিবা লাগিছে হ'ব নাই একো নহয় তেতিয়া অকণমান সহজ হৈয়ে গ'ল ন কথাটো তেনেকৈ বহুতখিনি বস্তু সহজ হৈ যায় তেনেকুৱা এজন কম্পেনিয়ন থাকিলে আপোনাৰ লাইফটো অলপ সহজে হৈ যায় আৰু অকণমান মানে এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ লাইফ কমপ্লেইনিং নহয় চেঞ্জ হৈ যায় পজিটিভিটি আৰু আহি যায় তেখেতক যেনেকৈ আমি টিভিত চাইছোঁ আপুনিও চাইছে টিভিত তেখেতক এজ এন এক্টৰ কেনেকুৱা লাগে যেতিয়া সেই মানুহজন যিজন মানুহক আমি বহুত দিনৰ পৰা চাইছোঁ তেখেত হি ইজ ইউৰ লাইফ পাৰ্টনাৰ নাও চ' কি চেঞ্জ আপুনি দেখিছে মানে ধৰক অন স্ক্ৰীণ তেখেতক মানুহে প্ৰায় নেগেটিভ ৰোলত দেখিছে এতিয়া মানুহৰ এটা ইম্প্ৰেশ্যন আহি যায় কিন্তু যে মানুহজন সঁচাকৈ তেনেকুৱা নেকি কিন্তু সম্পূৰ্ণ চাগে আপচাইড ডাউন নহয় জানো একেবাৰে উল্টা মানে যেনেকুৱা ৰোল প্লে কৰে তেনেকুৱা তেওঁ সেইটো ৰোল এটাহে প্লে কৰিছে কিন্তু মানুহৰ এটা ধাৰণা হৈ যায় এনেকুৱা ৰোল প্লে কৰে এনেকুৱা চাগে কিন্তু একেবাৰে উল্টা খুব মৰমীয়াল খুব চেঞ্চিটিভ ইম'চনেল কাকো দিগদাৰী দি পেলাই মনত দুখ দি কথা নকয় খুব চেঞ্চিটিভ সেইটোৰ প্ৰতি মানে কোনোবাই দুখ পাব নেকি হেৰি পাব নেকি চ' এইবোৰ বহুত শিকিবলগীয়া গুণ বহুত আছে তেওঁ চ' অকল পজিটিভ তেওঁৰ লগত আপুনি পজিটিভ হ'বই লাগিব মানে তেওঁ পজিটিভেই কথা কয় এই অৰাটো ক্ৰিয়েট কৰি অৰাটো একদম सर 90s में जब आपने एक्टिंग की शुरुआत की थी उसके बाद से अब तक 300 से अधिक आपने फिल्में की है 11+ लैंग्वेजेस में तो व्हेन डिड यू डिस्कवर योरसेल्फ एज एन एक्टर आपको कब ऐसा लगा कि आई शुड बी इन दिस प्रोफेशन एज एन एक्टर मानस वो हुआ कि जब मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहता हूँ और जब 90s में मैं इस फील्ड में आया तो एकदम फिल्म एक्टिंग बहुत इजीली कोई आदमी सोच नहीं सकता था जी। और हम लोग भी बहुत दूर थे फिल्म एक्टिंग ऐसे जी मैं बार बार फिल्म एक्टिंग क्यों कह रहा हूँ उसकी भी वजह बताता हूँ जी मेरे लिए क्योंकि मैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ आई हैड वेरी ओल्ड पेरेंट्स तो मुझे एक बात साफ था कि उनका ख्याल तो मुझे ही रखना है तो उसमें ना बहुत ये नहीं कोई आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने वाला है अब मुझे ढूंढना था कि मैं किस तरह से उनका ख्याल रखूँ सो आई डिडंट कम इनटू एक्टिंग क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहता था जी आई केम इनटू एक्टिंग मुझे एक्टिंग करना अच्छा ज़रूर लगता था ऑब्वियसली बट आई वांटेड टू समहाउ टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स ओके तो मेरे लिए कहते हैं ना कि कुछ समझदारी करूँ क्योंकि मैं साइंस पढ़ना चाहता था इंजीनियर बनना चाहता था साइंस लिया 12th तक लेकिन पता चला कि मैं एक मैथमेटिक्स में मैं स्पेक्टेकुलर फेलियर था मतलब स्पेक्टेकुलर फेलियर इसलिए क्योंकि मैं आई गॉट 4 आउट ऑफ 100 ओके और मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे 4 नंबर क्यों मिले अच्छा और मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू एजुकेशन सिस्टम का उस वक्त जिसमें 5 में से 4 में अगर आप निकल जाओ तो लोग पास कर देते थे इसलिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी बट आई रियली वॉन्टेड टू स्टडी साइंस आई रियली लव्ड साइंस आई लव द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड ओके बट आई वॉज अ फेलियर इन मैथमेटिक्स सो आई हैड टू गिव अप मैथमेटिक्स आई गिव अप साइंस एंड हिस्ट्री में आया तो मैं बड़ा अपसेट था अपने आप से मैं करूँगा क्या यार मेरे कजन्स जो थे वो IITs कर चुके थे you know कोई one of my cousins had gone and studied at the MIT और मैं 12th में मैथ्स में फेल हो गया so I was at very low self esteem और वो एक ऐसा टाइम था जब you're either a doctor or an engineer तो भी I wanted my parents to be proud of me I wanted to take care of my parents लेकिन मैंने कहा कि ये नहीं हो रहा
एंड दैट इज़ व्हेन आई सेड कि मुझे कुछ और करना है, एंड दैट इज़ व्हेन आई हल्का सा मुझे एक ग्लिमर दिखा कि शायद मैं एक्टर बन सकता हूँ जी। और एक और चीज़ बता दूँ कि उस समय बहुत साफ था, मैं जैसा दिखता था, कहते हैं ना कईयों को आप देख के कहता कि भाई एक्टर बनना, हीरो क्यों नहीं बनता, तो अपन जैसे दिखते थे कोई कहता ही नहीं था कि तू हीरो बन सकता है या एक्टर बन सकता है। तो मैंने कहा कि उसके बावजूद करना तो है, तो एक ज़िद भी थी, ज़रूरत भी थी। उसके बाद मैं एक्टिंग लाइन में आया। पर ये भी बताता हूँ कि ये शायद 250 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं, जो भी नंबर है वो, बट एक चीज़ साफ है दोस्त की, बहुत सालों तक डरा हुआ मैं रोल करता था, क्योंकि पता नहीं था अगला काम कब मिलेगा। लेकिन ड्रॉकाल वाज सर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल अमेजिंग, नेशनल अवार्ड। यस सर। लेकिन उसके बाद जब मैं उसके नेशनल अवार्ड मिलने के बाद जो पार्टी में गया, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसके पैसे दे पाऊँ। अच्छा। तो सच्चाई ये है कि आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है, वही जो मैंने बताया ना कि आपको बाहर से कुछ चीज़ बहुत अजीब दिखती, अलग गज़ब दिखती है, लेकिन अंदर कुछ और है। सालों तक किराए के घर पे रहने के बाद तब मैं दक्षिण गया, और तब दक्षिण में जाके मैंने काम करके कुछ पैसे कमा के अपना पहला घर लिया। तो ज़िंदगी के बहुत आयाम देखे इस पूरे दौरान, जब मैंने अपने आप को पाया कि ये सचमुच एक कर्म भूमि है, और इसीलिए मैं फिल्मों को, मैं उसको ग्लिट्स, ग्लैमर उसकी तरह से नहीं देखता हूँ। इसलिए मैं किसी से भी फिल्मों की बातें नहीं करता। इसमें मेरे रिलेटिव्स जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, वो हंसते हैं मुझ पर, या वो कहते हैं अरे आशीष से फिल्मों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फिल्मों को डिस्कस नहीं करता हूँ, फिल्म एक्टर्स को डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसको एक काम के रूप में देखता हूँ। आई लुक एट इट एज अ वर्क। सो एवरी डे, नॉट अ ग्लैमरस थिंग। लोगों को ग्लैमर दिखेगा, हम ऐसा नहीं कि बड़ा काम, ऐसा नहीं, इट्स अ वर्क दैट वी लव टू डू एंड वी गो एंड डू। बट इसको आप ग्लिट्स की तरह देखेंगे, बॉस का पैसा मिलेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक लंबे खिलाड़ी हैं, तो यू हैव टू सी दैट एवरी डे यू रिपोर्ट फॉर अ जॉब, यू डू द जॉब वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग hope to get another job. So I look at it as a professional actor. तो मैं जब इस चीज़ को बारे में as a professional देखता हूँ, तो every day, I mean, I'm very lucky, very blessed कि मैं इतनी भाषाओं में काम कर चुका हूँ, इतने पूरे देश विदेश में इंडियन डायस्पोरा मुझे जानती है, and they give me a lot of love and affection. I'm blessed and grateful to it, and therefore I don't take it for granted. Every day when I go in for a shoot, my next shoot, it's day one of my career. Okay. इसीलिए सर वो झलकता है सर, what characters you have played सर, हाँ. every movie, और वो झलकता है, आपके पैशन झलकता है जी. सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें आपने अपना खुद का पीठ थपथपाया होगा, तो which one would be? एक परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को देखी नहीं, उस फिल्म का नाम है बॉलीवुड डायरीज। ओके। वो यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है, बॉलीवुड डायरीज। Okay. हैव अ लुक एट इट, दैट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। अगेन एक ऐसे टाइम पे मिला था जब मुझे कोई अच्छे रोल नहीं दे रहा था यार, Okay. तो वो रोल ले लो। वो फिल्म अच्छी चली नहीं। बॉलीवुड डायरीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे इस रात की सुबह नहीं बहुत पसंद है। यस। कई तेलुगु फिल्म्स हैं मेरी बहुत अच्छी हैं, तमिल फिल्म्स हैं मेरी काफ़ी अच्छी हैं। तो आप अलग अलग टाइम पर कुछ बहुत अच्छे रोल्स करते हैं एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट, वो सेटिस्फैक्शंस मिलते हैं सर। बट मानस एक एज एन एक्टर ना, आपको वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ उस मोमेंट पे रहता है, हो गया डन, ओके नेक्स्ट, नो व्हाट नेक्स्ट। खूब मेरे मैनेजर कई बार मेरे को हंस के कहते हैं कि सर यू कीप टेलिंग पीपल कोई इंटरेस्टिंग काम करना है, सर आपका तो डेट नहीं है। तो मैंने कहा डेट अभी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कभी नहीं होगा। आई एम स्टिल ऑलवेज कीन टू डू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रोल, ऑफ कोर्स, है ना। कल सुबह भी 7 बजे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग, कुछ होपफुली एक इंटरेस्टिंग नरेशन लेने वाला हूँ सुबह 7 बजे, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर दैट नेक्स्ट अमेजिंग रोल। और जैसे ही वो रोल खत्म हो जाता है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट आ जाता है। तो अभी हमारा राना नायडू रिलीज हुआ, आई वाज वेरी हैप्पी। एक फिल्म बहुत अच्छी है मेरी, वो आप प्लीज़ देखिएगा, उसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके। ये मेरा ख्याल से सोनी लिव पर है। ओके। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, it's a Tryst with Destiny on Sony Live is a very interesting performance of mine. I'm very proud of it. Okay. आप कभी देखिए। उन्हीं के साथ मैंने एक और फिल्म करी है, प्रशांत नायर उनका नाम है,
उसका नाम है ट्रायल बाय फायर, जो अभी नेटफ्लिक्स पर चल रही है, जी वो है, राणा नायडू है. सो दे आर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स. Then there is an interesting different kind of a role again. It's called Half Pants Full Pants Okay. on Amazon Prime. Okay. आर्या पार है. तो मैं अलग अलग जॉनर में खेलता हूँ. तो ऐसे जैसे कि बोला जाता है कि एक फिल्म या एक मूवी मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ डायरेक्टर्स पार्ट. हाउ इंडिपेंडेंट आर यू एज एन एक्टर? वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्टर. एक बात बिल्कुल, देखिए आपको डायरेक्टर एक रोल देते हैं, आप एक लेवल पर एक्सेल कर सकते हैं जब आपका, इफ यू आर गुड इनफ यू कैन रीच वन लेवल, बट द डायरेक्टर टेक्स योर रोल टू अनदर लेवल. सो द यूज ऑफ अ डायरेक्टर फॉर मी एज एन एक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वो वैसी ही बात है ना, एक कहते हैं कि आप अगर आप एक अच्छे सोल्जर हैं तो आपको जनरल की क्या ज़रूरत है. जी. सो आई रियली थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जोश के साथ साथ होश का होना, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर उस होश को संभालते हैं जो आप जोश से कुछ कर रहे होते हैं. एंड दैट्स ट्रू नॉट जस्ट इन फिल्म्स, इट्स ट्रू इन लाइफ आल्सो. Yes, of course. Do you agree? Yes. That we think through life, we deal with life together as a partner. And for me, the actor-director is a very symbiotic relationship. Of course. और अगर आप relationships में कहें, relationships का मज़ा तब है जब ये रोल स्विच होते रहें. कभी कोई एक्टर है, कभी कोई डायरेक्टर है, कभी कोई जोश दिखा रहा है, कभी कोई होश दिखा रहा है. और हम जब अपने म्यूचुअल स्ट्रेंथ्स को एनहांस कर पाएँ, दैट इज़ द विक्ट्री ऑफ लाइफ. नहीं तो ऐसा होता है कि अरे मैं ही चला रहा हूँ सब कुछ. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम इट्स कॉल्ड, मैं आपके साथ एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ करता हूँ, मैं अपने टॉक्स में करता हूँ, मैं जैसे आपको शेयर करता हूँ. इट्स अ प्रिंसिपल कॉल्ड टू ऑफ अस. Okay. तो अगर हम लोग कहें कि एक ही लीडर है, तो उस लीडर ऐसे करे बेचारा खींचते खींचते थक जाता है. अरे यार मुझे खींचना पड़ रहा है इनको यार. आई सी लाइफ एज इट्स कॉल्ड द टू ऑफ अस. टू ऑफ अस इज दिस द लीडर. लीडर ने पुल किया, हाँ. उसका दूसरे ने पुल किया, दूसरे ने पुल किया. काम वही हो रहा है लेकिन. समझ रहे हैं? तो वी आर नाउ कलेक्टिवली राइजिंग. एक टाइम पर एक जनरल लीडर है, दूसरे टाइम पे एक जनरल लीडर है. एंड इट इज हैपनिंग. So in a way, both are participating, both are responsible. So it's not कि तुमने कहा. It's like, okay, we are now taking the next step. So in life also, something which I really believe in is, don't give up on yourself. ठीक नहीं हुआ ना, next step लो. Secondly, बहुत अच्छा हुआ ना, fantastic, फिर next step लो. Either way तुम्हें next step लेना है. जी. And as we take next steps with a lot of humility and with confidence, that is when you're responsible. आप उस steps को आप लेते रहते हो. तो in personal life, for your passions, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं फूड रील्स बनाता हूँ, मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ. हम दोनों एक बहुत इंटरेस्टिंग नया एक चीज़ लाने वाले हैं 1-1.5 महीने में. उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जहाँ पर हम लोग एजिज्म पर बात करने वाले हैं. आजकल मखौल और मजाक उड़ाया जाता है अगर कोई किसी उम्र का है. तो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि हम लोग दोनों 50 प्लस के हैं, 50 प्लस के हैं. लोग कहते हैं ना, आई फील लाइक एन 18 year old. आई फील लाइक अ 58 year old, क्योंकि मैं 58 साल का हूँ. बट कैन आई बी प्राउड ऑफ माई एज? कैन शी बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट शी इज 50 years old? आई एम फीलिंग लाइक 18. ज़रूरत नहीं है. आई एम 50 एंड आई एम, और मैं इसके साथ कुछ अमेजिंग करूँगी. तो इस पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ पर लोग, people feel proud of whatever age they are at. You may be 22, you may be 70. Be the best. Of your age. Don't feel ashamed of your color, of your weight, of your height, of your jati, of your age. Don't feel shy. ये मेरा है ना? So those are some of the things that we are planning to do. Amazing. আৰু তেখেতে যিটো কথা ক'লে, টু অফ আছৰ কথা, মই সেই বিষয়টো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ. এতিয়া ধৰক আপুনি এগৰাকী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উমেন, আপুনি অন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, আপুনি নিজে কাম কৰি আছে. গতিকে আপোনাৰ সেই বিষয়টো অলপ জানিম যে কেনেধৰণে আপুনি নিজক ব্যস্ত ৰাখিছে. মই আগতেও মানে মোৰ আগৰ লাইফত যেতিয়া মই আগতে ইউকেত আছিলোঁ, তেতিয়া মই সদায় সেই ডিজাইনিং প্ৰতি অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড. চ' তেতিয়া মই এক্সিবিশ্যনছ কিছুমান কৰিছিলোঁ, ইউকেত এক্সিবিশ্যন.
আৰু মোৰ মাহী ইয়াত য'ত ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে তেওঁ নিজৰ শাল আছে তেওঁ নিজে ডিজাইনাৰ চ' তেওঁ ক'তো শিকা নাই নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত সদায় সৰুৰ পৰা মই দেখিছোঁ ঘৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাইছে খুব দেই। ধুনীয়া মই- চব ক্ষেত্ৰতে বিৰাট তেওঁ ধুনীয়াকৈ খুব সজাইছে। আৰ্টিষ্টিক চ' তেওঁ হেল্পত আমি একেলগে এক্সিবিশ্যন ইউকেত কৰিছোঁ তেনেকৈ মোৰ সদায় ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ গুচি আহিলোঁ মই ইয়াৰ আগতে গুৱাহাটীত আয়ুষ চন্দ্ৰ হস্পিটেলত অলপ দিন কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এই এখন নামেগ যোনখন আমাৰ ষ্ট'ৰ মোৰ ভণ্টিৰো একেই ইণ্টাৰেষ্ট চ' মোৰো একেই ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এগৰাকী আমাৰ বন্ধু আছে চ' আমি সেইকাৰণে এখন হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ষ্ট'ৰ খুলিলোঁ তাহাঁতি সেইটো আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল মই তেতিয়া অলৰেডি হস্পিটেলত মানে মই এতিয়া হস্পিটেলত কাম কৰি আছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল সেইখনৰ নাম নামেগ তাতে নামেগো ইনিচিয়েলছ অফ দ্য অ'নাৰ্ছ নামিতা মেঘালী তাত মোৰ নামটো নাই কাৰণ মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰৰ পিছত মই জইন কৰিছোঁ চ' যেতিয়া এইবিলাক হ'ল মোৰ লাইফত আপছ এণ্ড ডাউনছবোৰ তেতিয়া মই মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন লয় ক'লে তুমি কলিকতাত যে আমি নামেগ খুলিছোঁ তুমিও জইন কৰা এতিয়া মই জইন কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো মোৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট একদম ভাল পোৱা বস্তু সেইকাৰণে আমি তিনিজনী মিলি সেইটো কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত কেফেখনো খুলিলোঁ লগত চ' ভেৰি হেপ্পী সেইটো জ'নত মই এতিয়া সুন্দৰকৈ কৰি আছে এতিয়া আৰু সেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো যিটো তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে একেলগে আগবঢ়াটো মানে তেখেতৰ পৰা সেই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সটো আপুনি কেনেধৰণে পাইছে তেওঁ মোক মোৰ কাম কৰিবলৈ উৎসাহটো সদায় দিয়ে আৰু আমি যেতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগাত এতিয়া মই তেওঁৰ লগত লাষ্ট বিয়াৰ পিছত 1.5 মাহ ঘূৰিয়ে আছোঁ বেলেগ বেলেগ জেগাত তেওঁ নিজেই খুব আৰ্টিষ্টিক মানুহজন চ' সেনেকুৱা জেগাবিলাকতে যাওঁ আমি আৰু মই তেতিয়া সেই আৰু আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰে দোকান হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্ট চ' তেনেকুৱা আমি ঘাটিবোৰতো মই যাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ তেওঁৰ লগত চ' তেওঁ মোক ডেফিনেটলি তেওঁৰ লগত থাকি মই আৰু নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো মোৰ কামতো হেল্প কৰিছে চ' ভিভাৰ্ছক লগ পাইছোঁ নতুন নতুন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট কৰা মানুহক লগ পাইছোঁ চ' দেট ইজ হেল্পিং ইন মাই জব অলছ' চ' তেওঁৰ পৰা সদায় আৰ্টিষ্ট খুবেই আৰ্টিষ্টিক চ' মাইণ্ডটো একদম চ' মোক বহুতখিনি হেল্প কৰে তেনেকৈ আৰু মই নিজৰ কামটো পূৰা কৰি আছোঁ তেওঁ মোক নতুন নতুন আইডিয়াজ দিয়ে আমাক বহুত আইডিয়াজ দিছে নামেগত তেওঁ নাৰুমেগ নামেগত খুব ফেণ্টাষ্টিক আইডিয়াজ থাকে চ' তেখেতৰ সেই যিখিনি ধৰক এতিয়া মই এই যিখিনি মটিভেশ্যনেল কথা এনেকুৱা এগৰাকী মানুহ লগত থাকিলেতো সদায় মানুহ মটিভেটেড হৈ থাকিব নহয় জানো আৰু নেগেটিভিটিখিনি নিজে নিজে আঁতৰি যায় তেখেতে সদায় নতুন নতুন কামত নিজকে ইনভলভ কৰে সেইটো এটা খুব ভাল কথা পেজটো বাঢ়ি যায় আপোনাৰ লাইফৰ পেজটো এতিয়া অলপমান লাহে উঠিছোঁ হেৰি নাই বোলা ফটাফট এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ এটা দিনৰ ভিতৰতে বহুত কাম বহিবলৈ নিদিয়ে এতিয়া উঠিলোঁ আজি বোলা লোকেল ট্ৰেইনত উঠোঁ আজি এইটো কৰোঁ মানে লাইফটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হেৰি এটা পেজত ৰাখে চ' ব'ৰ হ'বলৈ সময় নাই আৰু তাতে নতুন নতুন বস্তু শিকা হয় নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনবোৰ মই কেতিয়াও এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়তো কৰা নাই তেনেকুৱা বস্তুবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ লোকেল ট্ৰেইনত মুম্বাইৰ কেতিয়াও উঠা নাই মই তেওঁ ক'লে আজি ছানডে বোলে লোকেল ট্ৰেইনত মই চোন উঠোঁ নেকি নাই বোলা একো নহয় উঠোঁ তেনেকুৱা মানে নতুন মই অলপমান কিছুমান এডভেঞ্চাৰ্ছ কৰিবলৈ অলপমান খুব এটা অলপমান ভয়ো লাগে মানে ইমান এটা নকৰোঁ তেওঁ মোক বহুত হেৰি কিবা চাইক্লিং ইন দি এয়াৰ সেইবিলাকো কৰালে তাৰপিছতে মানে অফৰোডিং মই যোনবোৰ কেতিয়াও নকৰিলোঁ হয় সেইবোৰো মোক কৰাইছে গতিকে লাইফটো ডেফিনেটলি pace to adventurous. You know, there's a very interesting part to this, Manas. Point is कि अनेक समय ना हमारे दिमाग में कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमको ना डिफीट कर देती हैं मेरे लिए भी है जैसे मुझे ना माउंटेन क्लाइंबिंग से बहुत इच्छा है लेकिन मेरे जो घुटने हैं ना बहुत वो करते हैं तो मैं श्रीलंका गया और मैं चढ़ गया एक जगह पर आधे रास्ते मैंने कहा कैसे पूरा करूँ फिर मैंने कहा नीचे देखा मैंने कहा नीचे नहीं आता ऊपर ही जाना पड़ेगा तो वो जो थकान हुई सब कुछ हुआ लेकिन उसके बाद एक सेंस ऑफ विक्ट्री मिला जी वहाँ पे पहुँच के हाँ आप समझ रहे मेरी बात तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू गिफ्ट योरसेल्फ सम विक्ट्रीज सो द पॉइंट इज नॉट कि एडवेंचर करेंगे वो इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म इट कैन बी इन एनी फॉर्म क्या हम ये याद कर सकते हैं हम लोग जैसे बहुत सुबह उठते हैं और सुबह उठ के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और मैंने देखा है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें कर पाता हूँ
सर वो जो एक्सप्लोर करने का, जो एडवेंचर करने का जो सर कीड़ा है, हाँ। वो कब से डेवलप? अरे यार वो बचपन से है, बड़ा पंगा है यार। वो माँ मुझे हमेशा कहती तुम बहुत, तुम्हारे पाँव के नीचे सरसों है, माँ कहती थी। वो करेक्ट निकला। वो मुझे कुछ एक्साइटिंग लगता है। मेरे को कहता है क्या सी चल रही है, चल रहा है। अबे यार प्लीज यार, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं मतलब नहीं होता है तो बड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह शूट करने के पहले, काम करने के जाने के पहले कुछ जाके कुछ करके फिर निकलते हैं, हल्का सा एक फिल्टर कॉफी पीते हुए कहीं निकल जाओ तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है। और मैं क्योंकि सुबह जल्दी उठता भी हूँ तो आई फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग। आई फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग दैट आई हैव डन समथिंग। मैं मेरा एक पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर लेता हूँ सुबह उठ के, या कुछ वॉइस नोट्स भेज देता हूँ अपनी टीम को। तो जनरली यू फील गुड अबाउट योर लाइफ कि यू डिड समथिंग गुड इन अ डे, है ना, फॉर योरसेल्फ। हाँ। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैं सबके साथ ही शेयर करता हूँ, अपने प्रोफेशन के अलावा अपने कुछ हॉबीज़ में अपने को इन्वेस्ट करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपके प्रोफेशन में आप जीत फील करें। नहीं यार काम अच्छा ही हो सकता है, काम अच्छा नहीं चल रहा, बट हैव समथिंग एल्स इन विच इज गिविंग यू अ विक्ट्री। सो गिव योरसेल्फ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू विन। ये हमारी जिंदगी है ना, आपकी जिंदगी है, तो आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा कुछ साइड में करिए। इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। जैसे मैं एज अ स्पीकर, मेरा वो साइड गिग शुरू हुआ था आज से 13-14 साल पहले। आजकल हम लोग तकरीबन अच्छे महीने में 10 इवेंट्स भी कर देते हैं, कई बार 4-5 इवेंट्स भी कर देते हैं। बट नाउ इट इज़ समथिंग विच इज़, मेरी कंपनी चलती है, आशीष विद्यार्थी एसोसिएट्स चलती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकिंग। साथ साथ अब मैं जब ब्लॉगिंग करना शुरू किया, अब हमारा 15 लाख के हमारे आशीष विद्यार्थी एक्टिव व्लॉग्स के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 1.2 मिलियन हो चुके हैं हमारे ऑन इंस्टाग्राम, आई मीन 3 मिलियन हो चुके हैं ऑन फेसबुक। तो वो एक अलग चीज़ है जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। वो एक्टिंग के अलावा की चीज़ है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत आयाम है। मैं खाने का शौकीन हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। उसके बाद आशीष विद्यार्थी पॉडकास्ट के थ्रू मैं अ बिलियन ड्रीम्स बोल के एक मुहिम चला रहा हूँ, वेयर आई इंटरव्यू पीपल हु आर नॉट वेल नोन, जो नामची नहीं है, मैं उनको इंटरव्यू कर रहा हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ उनके क्या सपने हैं, क्योंकि हम में से सबों के कुछ ना कुछ सपने हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सपने ऐसे हों कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। आप अपने घर में अच्छा, सो आई वॉन्ट टू टेल स्टोरीज ऑफ विक्ट्री। दोबारा मैंने कहा, दुनिया में ये बुरा हो रहा है, देश में ये बुरा हो रहा है, वर्ल्ड की ये बुरी हालत है, मुझे उसमें नहीं जाना। उसके लोग बहुत लोग हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, इस देश में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इस देश में, इस मोहल्ले में लोग अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल दो स्टोरीज बिकॉज आई रियली थिंक जो भी कंडीशन है उसका इम्प्रूवमेंट वही लोग करेंगे जो कुछ काम करेंगे। जो डिस्कस करेंगे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, वो बुराई करेंगे। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पीपल। और ऐसे अमेजिंग लोग हैं जो लगे हुए हैं बॉस, दैट वर्क कल्चर। एग्जैक्टली, आई लव पीपल हु वर्क। और एक जो इग्नाइटिंग सर, इग्नाइटिंग माइंड्स, yes. उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। सो एविड माइंडर जो हमारा काम है, इट इज अबाउट पीपल गेटिंग इग्नाइटेड अबाउट देमसेल्व्स। हम लोगों को जब अपने बारे में होप रहेगा तब हम अपनी जिंदगी को इग्नाइट करेंगे यार कि कुछ किया जाए, कुछ कहते हैं स्पार्क किया जाए। मैं भी जब आपसे बात करूंगा, अगर आप ऐसे बैठे, मैं कहूँगा यार पता मानस क्या किया जाए, बता। ये मत बता कि क्या नहीं हुआ, वो तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मेरी भी बड़ी लंबी लिस्ट है। अब पता है करें क्या नेक्स्ट। अब आप कुछ आइडिया देंगे, चलो हम करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ अच्छे से, को मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे क्यों नहीं बात करते, रूपाली से बात करो। रूपाली, डू यू थिंक यू कैन ऐड वैल्यू टू दिस? सो लेट अस गेट टुगेदर एंड इग्नाइट माइंड्स। इनसे क्या कुछ किया जाए। अगर आप देखें हमारे देश में जो कुछ भी आज कर रहे हैं, वो चाहे चंद्रयान हो, चाहे कुछ भी हो, इट इज़ अबाउट सम पीपल हु गेट टुगेदर एंड से कुछ एक्साइटिंग किया जाए यार। अदरवाइज आप बैठ के सिर्फ डिस्कस करोगे यार ये बुरा है वो बुरा है, भाई प्लीज़ मुझे दुखी मत करो, मुझे लोगों की बुराई मत बताओ। जो लोग हैं उनको बुराई मुझे नहीं सुनना। मुझे तुम बताओ कि कैसा हम लोग नेक्स्ट ब्रेक थ्रू करें, कैसा हम लोग कुछ नेक्स्ट बिजनेस क्रिएट करें, कैसे हम लोग नेक्स्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो दैट्स व्हाट आई डू विथ माय मोटिवेशनल टॉक्स। बहुत মানুহক কানেক্ট কৰাই দিয়ে। তেওঁ যেনিবা আজি আপোনাক তোমাক লগ পালে, তেতিয়া তোমাৰ আৰু কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট থাকে যাৰ হেল্প হ'ব তোমাক লগ পায়, তেওঁ মানুহবোৰক খুব কানেক্ট কৰায়।
সেইটো মই দেখিছোঁ মানে হি মানে কামটো কৰাই দিয়ে। কামটো কৰাই দিয়ে যে এইটো তুমি এইটো কামৰ কাৰণে মোৰ এজন বন্ধু আছে এনেকৈ তেনেকৈ হেল্প কৰে মানুহক কানেকশ্যনছ বিলাক লগাই দিয়ে क्योंकि see you I might not be able to help everybody but I know तुमको करना है अच्छा सुनो यार would you like to have a look at this guy और क्या है you add value to someone who can add value to others yes रोको मत अपने आप को no you are connect नहीं कर दो यार एंड किसी ना किसी को आप जब बढ़ाते रहोगे जिंदगी में वो चीज़ एडिशन होती रहेगी बढ़ती रहेगी जी हाँ हटेगी कभी नहीं जी हाँ सर लेकिन आप जैसे कि अभी आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी हम जानते हैं तो आपको क्या लगता है सर कि मोटिवेशन किन लोगों को चाहिए फ्रैंकली बताऊं जो सचमुच भूखा होता है ना उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती ओके वो पत्थर से पानी निकाल देगा पर हम लोग ज़्यादातर लोग हमारे पेट में खाना तो है लेकिन हम नेक्स्ट लेवल पर अपने को ले जाने से हम लोग वी हैव गिवन अप होप आप समझ पा रहे हैं Interesting. हम लोग ज़िंदगी में कुछ तो है मतलब रात को भूखे नहीं सोएंगे लेकिन कुड़ते हुए खाएंगे और कुड़ते हुए जगेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे जो एक्साइटमेंट दिखाएंगे तुमको कहेंगे क्या एक्साइटेड हो तुम किस बात पे एक्साइटमेंट तुम्हें पता है तुम कम पैसे कमा रहे हो वो उधर पैसे कमा रहे हो वो नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी नौकरी के बारे में कंप्लेन भी करेंगे मोटिवेशन में मैं क्या करता हूँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ लोगों को कि यार तुम कुछ मत करो तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छी बातें बोलो जब मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में रिस्पेक्ट बढ़ेगा ना तो मैं अपने दिन को निकम्मा दिन नहीं होने दूंगा कोई कहता है ना हाउ इज अ डे रूटीन यार तो यू जस्ट इंसल्टेड योर ओन डे यस यू जस्ट इंसल्टेड योर आई रिफ्यूज टू इंसल्ट माई डे मेरी जिंदगी है भाई रूटीन खुद ने बनाई खुद ने बना दिया और अपने को बुरा कह रहे हो मैं तो कहता हूँ आई हैव एन एक्साइटिंग डे यार आई हैड एन एक्साइटिंग डे आई डिड समथिंग अमेजिंग मैं बहुत सॉलिड थका हूँ और मैं किस्मत वाला हूँ कि अच्छा थका हूँ आज भी 4:45 उठाऊँ साहब इसके बाद भी कुछ बहुत एक्साइटिंग करने वाला हूँ मैं गुवाहाटी में आया हूँ मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ लाइव म्यूजिक होता है जी आज मैं एटलीस्ट 2 जगह पर जाकर कुछ लाइव म्यूजिक सुनने वाला हूँ वाह आई वांट टू मैंने नहीं सुना था गुवाहाटी मैं सुनना चाहता हूँ आज क्यों क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ तो सुना जाए ना कुछ और हम लोग कुछ एक लोग रूपाली और उसके कुछ एक कजन्स मैं हम लोग कुछ एक दोस्त हम लोग जाएंगे सुनेंगे रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाएंगे सुबह 4:45 उठ जाऊंगा कल फिर नया दिन बहुत नया दिन कुछ अमेजिंग किया जाए कुछ বঢ়িয়া মই অনুষ্ঠানটো শেষৰ ফালে আহিছোঁ গতিকে শেষত মই এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে অসমলৈ আগতে আহিছে তেখেতে কৈছে অসমৰ হয়তো বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ গৈছেও আৰু তাতে তেওঁ অভিজ্ঞতা কৰিছে কিন্তু এতিয়া তেখেত অসমীয়াৰ জোৱাই গতিকে তেখেত ফুডি তেখেত এগৰাকী ফুড ব্লগাৰ গতিকে তেখেতক নতুন খাদ্য আপুনি কিবা খোৱালে নে নাই এইবাৰ অহাৰ পাছত নতুন খাদ্য অসমীয়া খাদ্য অসমীয়া টেঙাটা অলৰেডি খাইছে একটা বেঁচে আছে। মাছৰ টেঙা হ্যাঁ। খোৱা নাছিল ও, আজি আজকে খাইছে। খেয়েছি তো মাছের টাঙা আজি মাছৰ আগতে বৰৰ টেঙা খাইছে মাছৰ টেঙা আজি খাইছে ওকে আৰু খাৰ এবাৰ खार আগতে আহি खार इस बार খাইছে। नहीं खाया इस बार नहीं हाँ, खाया इस है बार खाया। ओके এবাৰ আগতে বহুত দিন আগতে হয়তো খাৰ খাইছিলে কিন্তু এতিয়া ফ্ৰেছকে নতুনকে আকৌ I খাৰ had gone down to that weaving village. শুৱালকুছিত খাৰ শুৱালকুছি। খাইছিলে লাষ্ট টাইম हाँ, আচ্ছা গতিকে वहाँ पर मैंने खाया था আৰু এইবাৰ পচলা বা তেনেকুৱা কিবা পচলা এতিয়াও খোৱা নাই खाया नहीं खाया এভৰিথিং नहीं खाया अशोकेर रसगुल्ला অশোক সুইটস अशोक स्वीट्स का रसगुल्ला आज मैंने खाया गजब था How was it, sir? अरे इट इज अमेजिंग बॉस अमेजिंग ইমান ভাল ৰসগোল্লা সঁচাকে ক'তো সঁচাকে খোৱা ভাল। নাই ভাল। অশোকৰ और ৰসগোল্লা इनफैक्ट अशोक मुझे जाके उनकी दुकान में जाना ही है आज क्योंकि ज़रा कुछ उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा कमाल किया था एक तो भाई मैं आपका नंबर खो चुका हूँ लेकिन मैं आज जाने वाला हूँ आपके उधर বঢ়িয়া और এবাৰ आपसे কি मिलूं। কৰিছে মই ক'লো মই কলিকতাটো মানে ৰসগোল্লা যদিও ইমান ভাল মিঠাই পায় অশোক সুইটছৰ নিচিনা ৰসগোল্লাৰ হেৰিয়ে বেলেগ টেষ্ট মানে এনেকুৱা পোৱা নাই ইয়াতে তেতিয়া তেওঁ হঠাৎ এদিন এনেকৈ হেৰি এটা আহিছে কলিকতাত তেতিয়া আমাৰ কথা বতৰা চলিছে চিনাকি ৰসগোল্লা পঠিয়াই দিছে ৰসগোল্লাখিনি খুব ছফ্ট হয় ন ভাঙি চিঙি গৈছে কিন্তু গৈ পাইছে কলিকতা তেওঁ মানে মই ভাল পাম বুলি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে তেনেকৈ নপঠায় মানে এনেকৈ টেমা চেমাটো নিদিয়ে আৰু এনেকৈ এটা হেৰি দিয়ে
গতিকে তথাপিও কিবাকে পঠালে But he couriered it for us. খুব নিজে very মানে sweet. সেইটো আউট অফ দ্য ৱে গৈ পেলাই কৰিছে Okay. সেইকাৰণে তেওঁ মানে খুব সেইটো কাৰণে থেংকফুল কৈছে মই নিজে গৈ থ্যাঙ্কস ক'ব লাগিব তেওঁলোকক এটা পুরো ভাল লাগে নহয় জানো আর আজকে আমরা খেলাম আমি আজকে আজি খেলাম প্ৰথম ফার্স্ট খাইছে अमेजिंग ओके तो ये न्यू और चीज सर हुआ। एसएमईज फूड आप ट्राई करना चाहेंगे कुछ बहुत कुछ मैं तो वैसे भी जहाँ जहाँ जाओ वहाँ खाओ पिछली बार मिसिंग किचन में खाया था जी इस बार देखते हैं क्या होगा 3-4 दिन ही है। পটল খাই খুব ভাল পায় हाँ पटोल को पटोल, फेवरेट 2 बार खा चुका हूँ मैं आज अमेजिंग सो আমি শেষলৈ আহিছোঁ অনুষ্ঠানটোৰ মই এটা কথা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ सर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप खाने के शौकीन हैं डिफरेंट रेसिपीज़ के शौकीन हैं और रेसिपीज़ ऐसे ही बनते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ से कुछ डालो टमाटर डालो हल्दी डालो थोड़ा यू नो डिफरेंट थिंग्स एक एक्सपेरिमेंट और उसके बाद जो निकलता है वो हम टेस्ट करके देखते हैं तो कैन वी रिलेट a recipe since you are a food lover with our life? How do you, sir, define that? In fact, that's an example that I believe in and I give कि आपको पता है हम सबका जो एक प्रोफेशन होता है जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं जी मैं एक एक्टर हूँ मेरे जो एक्टर हूँ या आप जो जर्नलिस्ट हैं वो एक रेसिपी है हमारी जो लोगों को पसंद आ गई है ठीक है अब मेरे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनसे मैंने वो रेसिपी बनाई बनाई है। एक्टर अब मुझे जानना चाहिए कि मेरे अंदर और भी आयाम हैं हमारे अंदर वी हैव गॉट मोर लेयर्स टू अस मोर पॉसिबिलिटी तो उन्हीं सेम इंग्रेडिएंट्स को कुछ और वेरिएशन में करके मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हूँ सो नाउ आई ऑल्सो बिकेम ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर yes उसके बाद उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को कुछ और वेरिएशन करके मैं एक व्लॉगर भी हूँ मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ मैं फूड व्लॉगर हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग जो भी हम लोग अपना प्रोफेशन कर रहे हैं वी मस्ट एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज हमारे Within ही us. यस हमारे ही इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको अपने आप को ट्रेन भी करना पड़ेगा जैसे मैंने कहा कि मुझे 1.5-2 साल लगे हैं मैं अब इसको यूज़ करता हूँ टू टेल माई स्टोरीज टेक्नोलॉजी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ यू नो या एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे कॉर्पोरेट चीज़ों के बारे में समझ करनी पड़ी तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू री इन्वेंट एंड मेक मोर वेरिएशंस ऑफ यू तो इसलिए आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया ये दोस्त बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जहाँ पर आपने कहा कि जैसे खाने में हम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक अच्छा शेफ experiment जो करते होता हैं, है जी। अच्छा शेफ जो होता है तो वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट आवरसेल्व्स एज शेफ्स हु कैन क्रिएट डिफरेंट रेसिपीज एंड याद रखिए हम सबका जो भी प्रोफेशन है आवर लाइफ इज गोइंग टू बी लॉन्गर देन दिस प्रोफेशन यस एक टाइम आएगा जब हो सकता है इस प्रोफेशन में उतना नहीं मिल रहा पर आपकी जिंदगी तो चल रही बाकी है ना आपको तो खाना है आपको तो घूमना है आपको तो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ करना है तो इसलिए इट्स वेरी गुड टू बिल्ड ऑल्टरनेटिव्स फॉर योरसेल्फ ऑफ कोर्स एंड क्रिएट मोर रेसिपीज विद द इंग्रेडिएंट्स दैट यू हैव वाह और जैसे कि कहा है किसी ने कि हर इंसान के अंदर 10-15 इंसान रहते हैं जिसको हमको देखना चाहिए और खुद को परखना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थोड़ा सा टाइम देने के लिए एट लास्ट आप जो भी व्यूअर्स दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्त बहुत प्यार से ज़िंदगी को लीड करिए फाइंड गुड इन अदर्स दूसरों के बारे में कुछ अच्छी बात कहिए और आप देखेंगे कि आपको दुनिया अच्छी लगेगी और मैं आप सब के लिए यही प्रार्थना करूँगा कि हम लोग सब अपना काम बेहतरीन करें और दूसरों को इम्पैक्ट करें और ये कोशिश करें कि अपने काम से ना हम किसी की ज़िंदगी में इजाफा करें पावर दिखा के किसी को दबाए ना उसको और बड़ा करें दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर ईच अदर एंड थैंक यू रूपाली फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस इंटरव्यू থ্যাংক ইউ সো মাচ থেংক ইউ বা আপুনি অলপ সময় দিলে লগতে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ एंड आई वांट टू रियली थैंक यू मानस आई रियली एंजॉयड दिस My pleasure, इंटरेक्शन sir. विद यू आपने बहुत प्यारे सवाल पूछे थैंक यू सर और मैं आपके अंदर एक जागृत लर्निंग जर्नलिस्ट देख पाया हूँ Thank सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच सर Thank you so much. The way you interacted, it's really, really very sweet. থেংক ইউ actually. থেংক ইউ এয়া আছিলে আশিষ বিদ্যাৰ্থী আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে
তেখেতক এগৰাকী অভিনেতা হিচাপেই নহয় তেখেতৰ যিখিনি আৰু অন্যান্য চিনাকি আমি সেইখিনিৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে অন্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ উদ্যোগী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতেও আমি কথা পাতিলোঁ তেখেতেও ক'লে যে তেখেতৰ এই যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাত যিখিনি উত্থান পতন সেইখিনি তেওঁ কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল তেওঁ কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো মানুহৰ এটা কম্পেনিয়নশ্বিপ লাগে মানুহে আগবাঢ়ি যাবলৈ এটা সহযোগীৰ সদায় প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কথা তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা কিছু ভাল কথা শিকিব আৰু এই ভাল কথা শিকোৱাটোৱেই আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য আছিলে ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি